Okay, so I hope my video is okay. So in today's session we're going to discuss about the hacking, and in previous session we have left it here, so यहाँ से हम आगे जो है move on करेंगे. So we have also discussed about the differences between the hacking and cracking. This was the main part of our previous lecture, and I hope you got this difference between these two terminologies. Okay, but if you have any questions, so आप आज के session के अंदर पूछ सकते हैं regarding the previous uh, queries. So in today's session, we're going to discuss about the second security risk, which is of viruses. The first security risk was hacking. Like hacking के through आप लोगों का data जो है वो stolen हो जाता है, corrupt हो जाता है. And now this is the second most common issue which the people used to face regarding the security, which is viruses. So what are these? What is this like? ये viruses होते क्या हैं? So the programs or program codes that can replicate itself with the intention of deleting and corrupting files or cause the computer to malfunction. अच्छा, इसमें ये होता है नॉर्मली कि वायरस आपकी किसी भी अननोन वेबसाइट या अननोन ईमेल को ओपन करने से, या किसी भी इस तरीके की कोई ऐसा कोई अननोन सर्वर हो उसको आप ओपन कर लें, कोई वेबसाइट हो, कोई वेब पेज हो, तो इससे ये होता है कि योर पीसी, योर डेस्कटॉप वुड गेट इन्फेक्टेड थ्रू द वायरस. सो इस वायरस नॉर्मली कंप्यूटर में जब एक वक्त में एंटर हो जाता है, सो देन इट विल फॉर्म इट्स डुप्लीकेट्स और रेप्लिकेट होता है, एंड देन at one time it will going to make your whole system crush, and you will going to see, you will going to experience this thing when your system will do malfunctions. Malfunction का मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम आप लोगों को सही तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, एंड आप लोगों का सिस्टम जो है वो सही तरीके से आप लोग जो काम मतलब कह रहे हो करने के लिए, इट वाज नॉट डूइंग राइट थिंग. ओके, जो आप जिसे चाह रहे हो इट वाज नॉट वर्किंग लाइक दैट. सो इन दैट केस योर सिस्टम इज बीइंग इन्फेक्टेड थ्रू द viruses, and you have to reinstall your windows, or you have to remove that viruses by installing some softwares like which will going to make your system prevent from these viruses. तो इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा. सो वी गोइंग टू कवर दैट in that session, in upcoming session. I think like in next session we will discuss about the antivirus softwares. तो next session में इंशाल्लाह हम इस चीज को कवर कर लेंगे, अगर आज हमारे सारे सिक्योरिटी रिस्क हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. So then we'll go to have the effects and methods to remove viruses, and what are the effects that will going to give by the viruses to your system. So first is like viruses can cause the computer to crash. सबसे पहले आपका कंप्यूटर जो है क्रैश हो जाएगा टोटली. आपका कंप्यूटर सही तरीके से वर्क नहीं करेगा. योर फाइल्स, योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, योर ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर विल गोइंग टू वर्क improperly, and it was not make you well aware of viruses, क्योंकि आपको इस चीज से पता भी नहीं होता, and it will form its copies after some time when it will enter in your system. कुछ ही टाइम बाद वो रेप्लिकेट होकर आपका पूरा सिस्टम को जो है वो एक तरह से क्रश कर लेता है, एक तरह से अपनी चपेट में ले लेता है. Second, you're going to have the effect that will caused by the virus is like stop functioning normally or become unresponsive. यही मतलब काफी ज्यादा सिस्टम लैग करना, काफी ज्यादा सिस्टम जो है वो इम्प्रॉपर बिहेव करना, फाइल्स का देर में ओपन होना, लार्ज फाइल्स का देर में इंस्टॉल होना. यू आर नॉट, your system is not working properly, it was misbehaving with you, it is not showing you the thing which you have searched, जो आप चाहते हैं ओपन करना वो ना शो हो रहा हो. तो इस तरह के इश्यूज में your system will malfunctioning, and in that case the virus is being in your system. Okay, third effect is like the virus can delete files and data. Yes, viruses जो है वो नॉर्मली आपके फाइल्स को, आपके डेटा को डिलीट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली. यू विल गो टू सी कि अगर आपने कोई अपनी फाइल जो है वो इंस्टॉल की है, कहीं आपने अपनी फाइल सेव की है, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन नॉट सी द फाइल देयर, सो दैट्स मीन द वायरस हैव ईटन दैट फाइल. हम ऐसा कर सकते हैं कि द वायरस हैव डिलीटेड और क्रश्ड आउट दैट फाइल और योर डेटा. It was not done rapidly. It takes time, day by day, or it takes week, or it takes either months as well कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो unresponsive शो होने लगे. The fourth effect that was caused by the virus is like it can corrupt files and data. वही चीज है, आपका फाइल्स, आपका डेटा, आपका सिस्टम, आपका आपका जितने भी आपने एरियाज में लॉग इन किया हुआ है, जितने जितने एरियाज का आपने एक्सेस लिया हुआ है, दे ऑल विल मिसबिहेव विथ यू, एंड यू विल नॉट being well aware of the issue
मगर अगर आपको पता होगा तो आप इजीली उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं वायरस को। इस तरह के इश्यूज में नॉर्मली आपको हमें लगता ही है कि हमने लोगों को नॉर्मली ये लगता है कि हमने जो है वो कुछ ज़्यादा फाइल्स जो है वो इंस्टॉल कर ली हैं, और वी हैव मेक अ ह्यूज लोड ऑन आवर डेस्कटॉप और ऑन आवर ड्राइव्स, एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज। सो इन दैट so that was a reason actually कि हमारा फंक्शन, हमारा जो है सिस्टम जो है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा। बट नो, दैट वाज नॉट एक्चुअली द रीजन, बिकॉज कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा भी होता है, मगर वायरसेस का भी कंप्यूटर में आ जाना एक नॉर्मल चीज़ है, तो इसको ईजिली हम निकाल भी सकते हैं। वी कैन मेक द सिस्टम एंटी प्रूफ फ्रॉम द वायरसेस। ये कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, पर अपने सिस्टम को ऑलरेडी ऑलरेडी अपडेट रखना, और अपनी विंडोज़ को अपडेट रखना, और अपने सिस्टम की नॉर्मल जो है वो रूटीन पर चेकिंग चेकिंग अप करना, और सिस्टम को जो है वो एकदम अपडेटेड रखना, तो इससे नॉर्मली होता है कि वायरसेस विल नॉट गोइंग टू हार्म योर सिस्टम। So the next thing is like methods. What are the methods of viruses? Like हम किन किन methods को use करते हुए we can make our system uh, away from the viruses. So first is like install up to date antivirus software. वही मैंने बात की आप लोगों से कि अपने सिस्टम को अप टू डेट रखें। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उन सबको अप टू डेट रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टॉल कर लिया बस, नहीं, उनके वर्जन अपडेट होते रहते हैं। सो यू हैव टू मेक those softwares update as well. डोंट यूज सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हैकिंग के सब्जेक्ट में भी ऐसे ही होता है कि आप किसी भी अननोन सोर्स को यू डोंट हैव टू यूज दैट अननोन सोर्स। अननोन सोर्स का मतलब ये होता है किसी अननोन वेबसाइट का कोई सॉफ्टवेयर, या किसी अननोन लिंक को आपने ओपन किया, उसका एक्सेस आपने लिया, एंड नाउ you are installing that software which is actually unknown. So in that case you will not make your system you can say proof from the viruses, but you are making your system in danger. आप अपने सिस्टम को खतरे से बाहर नहीं कर रहे, you are making your system to be in danger by installing that types of software which are related to the unknown sources. Okay, I hope this thing is clear to you all, the effects and methods. Be careful when opening emails attachments from unknown senders. So वही मैंने बात की, मैं फर्स्ट जैसे ये कह रहा हूँ कि किसी unknown सेंडर्स के थ्रू आप उन ईमेल्स को ना ओपन करें। आपका इसमें ब्रूट फोर्स अटैक का भी पार्ट होता है, ये डेटा इंटरसेप्शन का भी पार्ट होता है, और इसमें नॉर्मली वायरसेस भी एंटर हो सकते हैं। अगर आप किसी भी अननोन सेंडर का, इफ यू आर ओपनिंग द ईमेल which is blocked with unknown sender, so definitely it will make your system harm in either ways, in a way of virus or in a way of any hacking technique। किसी भी तरीके से आपको जो है वो सिस्टम जो है वो डेंजर में चल जाता है, it will make your system harmful। ओके, वायरसेस को यहाँ पर जो है वो इसकी एक तरह से कह सकते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क होता है आपके सिस्टम को फ्रॉम द वायरसेस, व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ साइबर एथिक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स व्हाट types of viruses you will going to experiences when you will have your desktop or when you have your windows। so आपको किस किस किस्म के जो है viruses को जो है वो आप experience करेंगे। so first is like this is a very general very normal text which is called as this I love you under and the dots। so these are normally those texts which are very popular among the attackers or among the crackers or among the hackers। तो ये बहुत ही normal text है जो कि sometimes refer to as love bug or love letter for you in a computer worm that infected over 10 million Windows personal computers on and after 4 May 2000 when it started spreading as an email message with the subject line I love you and the attachment love letter for you text VBS। इसका मतलब ये है कि it is a very popular technique, or it is a very popular bug that have infected more than uh, thousands and more than you can say 10 million windows is being affected by this bug। आपको एक ईमेल मौसूल होती है, उसका जो टाइटल होता है ईमेल का, सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो आई लव यू होती है, उसकी अटैचमेंट में लिखा होता है लव लेटर फॉर यू। सो दीज आर एक्चुअली द कोड्स which work as a bug, and when you will open that email, so that bug will going to enter into your system through that unknown email, and it will make your system crushed, make your files damaged by replicating itself। अपने आप को replicate करते हैं और पूरे सिस्टम को जो है वो एक तरह से खराब करके रख देते हैं। your system will going to be working as a malfunction। so ये 4 मई 2000 सेंचुरी से मतलब 2000 ईयर्स से जो है वो काफी ज्यादा जो है वो स्प्रेडिंग होने लगा है ईमेल मैसेज के थ्रू।
Okay, so this is the one of the very most common viruses which we have added in our course. So हमने हमें 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 चाहिए, हमें चाहते थे हम कि आप जो है वो हमारे जो भी स्टूडेंट्स जो कोर्स को ज्वाइन करें, so they will going to know about the viruses which are very common in nowadays. Okay, so now we're going to have a security risk number three, which is phishing. It's not like hunting the fishes; it's a hunting your data by the hackers. तो ये एक फिशिंग ऐसी सिक्योरिटी रिस्क है जहां पर आप लोगों का डेटा नॉर्मली जो है वो कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए और डेटा वुड बी स्टोलन बाय द हैकर्स. सो इसको स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट यू ask you all that if you all are well aware of the security risk number two, which is viruses. So do let me know in the comment section कि आप लोगों को वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है about the viruses, their effects, their methods, and their types. So then we're going to move towards the phishing. I hope you all get to know these all things. I just want you to write a short message, acknowledge, noted, so I can know that you all are present and you are listening to me what I was telling to you. और ये बहुत important चीज़ है ताकि बाद में आप लोगों को अपने assignments में issue ना हो. Okay. ओके, सो फर्स्ट मैसेज आई हैव रिसीव फ्रॉम होनेस एक्नॉलेज. ओके, थैंक यू सो मच. सो इसी तरीके से आप लोग भी जो है वो टेक्स्ट करें कमेंट्स में, या अगर आपको माइक ओपन करके इफ यू वांट टू से समथिंग इन बिटवीन सेशन, तो आप अपने सेशन के बीच में भी अपनी भी जो है वो व्यूज या फीडबैक को शेयर कर सकते हैं, या एनी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन बिटवीन द सेशन रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द टॉपिक. ओके, so now we're going to move towards the security risk number three, which is phishing. The creator sends out a legitimate looking email. As soon as a recipient click on a link in the attachment, the user is sent to a fake or bogus website. इसमें ये होता है कि आप लोगों को एक legitimate लुकिंग ईमेल, इसका मतलब ये कि कोई आपको ऐसा शो होता है कि यार कोई गूगल की तरफ से या कोई प्रोफेशनल या कोई जो है वो हमारे अकाउंट्स की तरफ से जो है वो कोई ईमेल आई है. जैसे होता है ना कि गूगल अकाउंट भी भेजता है कि इफ यू लॉग इन योर आईडी इन सम सॉफ्टवेयर, या फिर कोई सी भी आप सोशल मीडिया साइट पे अपनी जो है वो ईमेल लॉगिन करते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे. सो इस तरह के जो है मैसेजेस आते हैं आप लोगों को, या आप कोई गूगल की कोई एप्लीकेशन को यूज करते हैं, आइदर गूगल क्लासरूम और आइदर गूगल स्लाइड्स और एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन. सो द गूगल विल गोइंग टू शेयर यू मैसेज थ्रू ईमेल. सो इस तरीके का ही एक पैटर्न को फॉलो करते हुए कि आपको ईमेल मौसूल होगी थ्रू योर इनबॉक्स. सो व्हेन यू विल गोइंग टू क्लिक ऑन दैट लिंक, सो उस लिंक पे, सॉरी उस ईमेल पे आप क्लिक करेंगे, सो देयर यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंसेस अ लिंक. आपको एक वहां पे लिंक नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर का एक लिंक होता है किसी भी चीज का. सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट लिंक, सो दैट ईमेल will make you move towards a bogus website. इस bogus का मतलब होता है फेक वेबसाइट, जो वेबसाइट आपको एक तरह से प्लांट की गई हो कि आप उस ईमेल को क्लिक करने के बाद जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सो द हैकर विल गोइंग टू मेक you went towards that area which the hacker wants you to go. Either it can be any website or either it can be any other email link as well. So phishing में normally ये होता है कि आप लोगों के लिए कोई fake websites generate की जाती है normally, and you will going to be trapped there, your data, your system, each and everything. ओके, so फोटोग्राफी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक क्लिप आर्ट पिक्चर मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर. यू कैन सी दैट hacker is being phishing your data from one computer to another computer, for from one laptop to another laptop. So इस तरीके से ये होता है कि आप जो हैकर होगा वो आपका सारा डेटा जो है वो फिश आउट कर लेगा. इट विल मेक योर सिस्टम टू बी cleaned out with the data. Okay, so next thing we will have the this type of text. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक इमेज शो हो रही है. यहाँ पर जो है वो you can see that it is a type of email which the user normally receive it. तो यहाँ पे देखा होगा like dear network user, this email is mean to inform you that your my university network password will expire in 24 hours. Please follow the link below to update your password. अब देखें, ये एक तरह से एक किसी यूनिवर्सिटी की ईमेल लग रही है. अगर कोई भी नॉर्मल यूजर होगा, so it will definitely click on that link. It will definitely going to click on that link because यहाँ पे शो हो रहा है कि माय यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका पासवर्ड जो एक्सपायर होने वाला है. अच्छा, अब ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, अच्छा इतना अभी तक जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी जो एआई की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है कि वो आप लोगों की असली जो है वो लोकेशंस, और इट विल गो टू ट्रैप योर रियल
your college names or university's name, so it will just generate any name regarding the university or college, और सिंपली आपको इस तरह से जो है वो मैसेज जनरेट करके दे देगा. तो ये माई यूनिवर्सिटी क्या होती है? इट्स जस्ट अ फेक type of university which is being added in this email so that the user will going to be worried about his password, और वो इस लिंक पर क्लिक करे to make your password to be to make his password not making it to be expire in 24 आवर. मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो रहा है कि 24 आवर्स में आपका एक्सपायर होने वाला है पासवर्ड, तो आप उसको जो है वो दोबारा से अपडेट कर लें अपने पासवर्ड को. सो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को किसी शॉपिंग किसी वेबसाइट से भी यू विल गो टू रिसीव एनी मेल, और आपको कोई प्रोफेशनल मेल किसी डिपार्टमेंट से और एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल एरिया से आप लोगों को किसी भी तरीके की जो है वो ईमेल मिल सकती है. एंड जस्ट यू हैव टू जस्ट रीड दैट मेल वेरी केयरफुली, एंड यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक्स जस्ट विदाउट रीडिंग एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन. आपको पता होना चाहिए कि जो आप उस ईमेल के अंदर वो चीजें लिखी हैं जिससे जिससे आप वेल अवेयर हैं, जो आपको पता होगी कि आपको उस तरीके से मेल मिलेगी. कहीं की अगर आपने कहीं जॉब का अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली यू विल रिसीव द जॉब लेटर थ्रू द ईमेल. अगर आपने किसी जैसे कोर्स में अप्लाई किया हुआ है, सो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गाइड द कोर्स मेंटोर्स विल गो टू गाइड यू थ्रू द ईमेल. या कोई स्कूल में आपने कोई ईमेल लिखी है तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू आंसर यू देयर ओनली. सो मगर इस तरीके की कोई रैंडम ईमेल आए, सो यू जस्ट हैव टू चेक इट एंड यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन दीज टाइप्स ऑफ फेक लिंक्स. ओके, सी द नेक्स्ट पिक्चर साइड पे आपको शो हो रही होगी लाइक योर पासवर्ड हैज एक्सपायर्ड मस्ट बी चेंज. तो इस तरीके के डायलॉग बॉक्सेस भी जो है वो जनरेट होते हैं. सो इसमें तो आपको कोई भी नॉर्मल यूजर को यही समझेगा ना कि आपका पासवर्ड जो एक्सपायर होने वाला है, आई हैव टू री गेन दैट पासवर्ड. सो ही विल जस्ट क्लिक ऑन ओके और एनी टाइप ऑफ एरिया विच विल मेक द हैकर सेटिस्फाई कि इसने मेरी बनाए हुए ट्रैप में ये फंस चुका है. आप उसको ओके करें या आप उस लिंक को रिएक्ट करें उस लिंक पर उसको ओपन करके, तो जिस तरीके से भी आप उसको जैसे अपना रिएक्शन देंगे उसको ओपन करेंगे, योर डेटा वुड बी फिश आउट एंड इट विल नाउ इन द हैंड ऑफ द हैकर. सो ये एक बहुत ही कॉमन किस्म की टाइप है विच इज कॉल्ड एज phishing. It is a security risk which is being used normally in nowadays as well. Okay, so now we're going to have the effects and methods of phishing, like how we can going to prevent our system to get the data to fish out, or second is what are the effects of phishing which the system will going to experiences. So the effect is like the creator can gain access to the personal data and commercial data. Personal data का मतलब ये है कि आपके पर्सनल अकाउंट्स, आपके ईमेल अकाउंट्स, आपके जो है वो फेसबुक अकाउंट्स, आपके किसी भी सोशल मीडिया साइट का अकाउंट, इट विल गोइंग टू गेन द एक्सेस ऑफ दैट डेटा. और कमर्शियल डेटा का मतलब ये है कि इफ यू हैव क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ वेबसाइट और एनी सॉर्ट ऑफ मार्केट प्लेस यू हैव एस्टैब्लिश कि आप वहां पर बाय सेल करते हैं, या वहां पर आप जो है वो किसी कंपनी के थ्रू आप उस मेल पर काम कर रहे हैं, आप उस वेबसाइट की जो है वो क्या कह सकते हैं कि आप उस वेबसाइट के जो है वो यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ वेबसाइट, या किसी भी किस्म से जो किसी किस्म की आपको वहां से अर्निंग मिल रही है, सो इन दैट केस दिस इज अ कमर्शियल डेटा. So it also get fish out when you will not uh, follow out the protocols which you have to follow to prevent your data to get fish out. Okay, आपको कुछ रूल्स कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है. आपको पता होना चाहिए कि किन किन एरियाज पर मुझे क्लिक करना है, किस जगह पर मुझे रिएक्ट करना है, किस जगह को मुझे इग्नोर करना है, किस मेल को मुझे रिप्लाई करना है, किस मेल को मुझे इग्नोर करना है. सो यू हैव टू बी वेल एलिजेंट रिगार्डिंग दीज टाइप्स ऑफ एरिया, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि आपकी छोटी से छोटी गलती या आपका कोई भी माइनर सा माइनर सेटिस्फेक्शन किसी भी साइट को लेकर हैकर को बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा जो डेटा जो है वो इजीली एक्सेस कर देता है. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी मच इंटेलिजेंट एंड वेरी मच alert regarding these things. Okay, second is like when they visit that bogus website, this can lead to fraud or identify theft. इससे ये होता है कि उन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो फ्रॉड होता है नॉर्मली, और आप लोग जो है वो इजीली उस ट्रैप में फंस जाते हैं. बहुत दफा ऐसा होता होगा कि कुछ लिंक्स आपके जो है वो फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स आपको शेयर करते होंगे एंड दे व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक इट वाज शोइंग दैट इट्स अ टाइप ऑफ व्हील, और उसमें बहुत सारे प्राइस लिखे होते होंगे, फोन, सेल फोन्स, और कार्स, बाइक्स एंड अप्लायंसेस, ऑल दीज थिंग्स. सो उसको आप स्क्रॉल करते होंगे एंड इट विल गोइंग टू शो यू दैट यू हैव वॉन अ कार, यू हैव वॉन एनी sort of prize, and you have to share this with 10 other friends, you have to share with 20 other friends on a WhatsApp group on this.
तो ये सब फ्रॉड है, इट्स जस्ट रबिश। और ये सब जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट मेकिंग योर डेटा टू बी लॉस्ट, इससे आपका डेटा नहीं लॉस हो रहा, मगर कभी-कभी ये बड़े पैमाने पे आकर आपका डेटा, आपका सिस्टम को जो है वो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। सो यू जस्ट हैव टू इग्नोर दीज़ टाइप्स ऑफ साइट्स, ओके? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्राइस के लालच में जो है ना लोगों को शेयर कर रहे हैं और मतलब इस तरह कर रहे हैं। सो दीज़ ऑल आर द फेक वेबसाइट्स, दीज़ ऑल आर द बोगस वेबसाइट्स, ओके? Method to avoid phishing. Like what are the methods in which you will going to avoid being fish out? Okay, many ISPs filters out phishing email. Okay, ISPs, it is the internet service protocols, and these are normally the security protocols. सबसे बड़ा प्रोटोकॉल तो आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपको शो हो रहा हो, यू कैन सी दैट दिस एज अ लॉग। आपको यहाँ पर मेरी एक लिंक नजर आ रहा होगा वेब एड्रेस बार में, you will go to experiences, you will go to see this is a log. So this is actually the internet service protocol which will showing you as a log. So ये वेबसाइट जो है वो प्राइवेट है, ये वेबसाइट का किसी को भी एक्सेस शेयर नहीं किया जा सकता, एंड दिस इज अ वेरी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल एरिया, इससे ये लॉक हो जाती है। सो इन दैट केस देयर आर मैनी ISPs filters protocols like that will going to avoid you to get your system to fish out। इस तरीके से और भी बहुत सारे जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, सर्विस प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू जो है आप अपने मेल्स में, खासकर आपके ईमेल आईडीज और अपने ईमेल्स को जो है वो आप सिक्योर रख सकते हैं, एंड यू विल अवॉइड योर योर सिस्टम टू बी फिश आउट through the way of email, okay? Second is the user should be questioned while opening email। इससे ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने वो इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स या आपने कोई भी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर या किसी किस्म की भी जो है वो आपने सिक्योरिटी को प्रिवेंट किया हुआ है फॉर योर डेटा, फॉर सिस्टम, सो इट विल गोइंग टू आस्क यू, द सिस्टम विल गोइंग टू आस्क यू in a form of alert or in a form of disclaimer or in a form of any डायलॉग बॉक्स के, वो आपको पूछते हैं कि आप ये वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं, दिस इज अननोन, इट इज फ्रॉम अननोन यूजर। वो आपको बता देता है सिस्टम आपको कि ये वेबसाइट अननोन यूजर की तरफ से है, दिस ईमेल इज फ्रॉम अननोन सोर्स, तो यू हैव टू ओपन इट और नॉट। अगर आपको पता होगा नहीं ये मेरी जानने पहचान वाले की ही है, तो वो आप उसको ओके कर दें एंड यू हैव टू ओपन इट। मगर अगर आपको लगता है कि यस द सिस्टम इज राइट, द डेस्कटॉप इज राइट, इट इज अननोन वेबसाइट, सो यू जस्ट हैव टू कैंसिल इट आउट, आप उसको ओपन नहीं करेंगे। तो ये सिस्टम आपसे तब पूछेगा जब आप कोई सर्विस प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपने जो है वो अपने ईमेल्स पर लगाया हुआ होगा। आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक व्हाट आर दैट टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कि आप जो अपनी मेल्स पर, अपनी वेबसाइट्स पे लगा सकते हैं, सो दैट यू विल प्रिवेंट योर डेटा टू बी लॉस्ट और हैक्ड बाय एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिस्क और एनी टाइप ऑफ हैकिंग टेक्निक, ओके? तो इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो हम आगे डिस्कस करेंगे। So next we will going to have the security risk number 4, which is farming. So if you all know like what are the farming is like planting the plants, मगर यहाँ पर जो farming है, it is planting an illegal virus in your system। कैसे, उसको हम डिस्कस करेंगे, मगर मगर उससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू लाइक, अगर आपको सिक्योरिटी रिस्क नंबर 3 जो है, जो कि फार्मिंग है, इफ यू सॉरी फिशिंग है, if you all are well aware of this fishing, so do let me know so that I can move towards the farming। I don't want you to have any type of question, any type of query in your mind after the session, because when the session is being ended, so you have to make your mind clear with each and every doubts, ताकि जो है वो बाद में आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो जब हम इन सब चीज़ों को practically experience करेंगे। When I'm going to share my screen and I'm going to share you some type of websites, and I'm going to share you some types of software like how you can install them, तब आप लोगों को इस सब के बेसिक्स पता हो कि what are actually these type of things and what are the purpose and effects and methods of these types of security risk, okay? So if all the students are well aware or they don't have any question regarding the phishing, so do let me know in the comment box, or you can open the mic and just say acknowledge, noted, or if you have any questions तो आप वो भी speak out कर सकते हैं। Okay, I've received the message from Hunez again, acknowledged। I want you all to share your participation, please। Okay, आप सब अपनी participation show करें so that I can know कि आप सबको समझ में आ रहा है। Okay, Tabesh have also shared, noted, sir। Okay, thank you so much। Now we're going to move towards the security risk number 4, which is farming। Okay,
malicious code installed on a user's hand drive or on the web server. The code will redirect the user to a fake website without her knowledge. अच्छा, इसमें ये होता है कि बहुत सारे malicious कोड का मतलब ये होता है बहुत सारे मल्टीपल कोड्स, उनकी बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ कोड्स आर बीइंग इन द यूजर्स हैंड ड्राइव और ऑन द वेब सर्वर. उसमें ये होता है कि जो कोड्स होते हैं वो आपकी या तो वेब सर्वर यानी कि वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली रिजेनरेट कर लिए जाते हैं, या फिर आपके जो है वो ड्राइव्स में, नॉर्मली गूगल ड्राइव्स होती हैं, उनमें उन कोड्स को जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है, उनको प्लांट कर दिया जाता है. सो देयर द कोड्स विल रीडायरेक्ट द यूजर्स टू अ फेक वेबसाइट विदाउट हर नॉलेज, विदाउट हर हिम नॉलेज. ओके, सो इससे ये होता है कि आपको वो फेक वेबसाइट्स जो हैं वो प्लांट कर देता है थ्रू दैट फेक कोड्स. उन कोड्स के जरिए वो एक वेबसाइट जनरेट कर देता है, और उससे ये होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, यू आर नॉट वेल अवेयर दैट आप जो है उस वेबसाइट को ऑलरेडी एक्सेस कर चुके हैं, आप उसको ओपन कर चुके हैं. इससे आपको पता ही चलता है कि वो वेबसाइट नकली थी, इट इज फ्रॉड, इट इज अ टाइप ऑफ टेक्निक, इट इज यू कैन से इट्स अ planted trick by the farmers which are used to farm out your data. तो उसके सूरत में मिलेशियस कोड्स की बदौलत आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर जाते हैं, और आपको पता भी नहीं होता कि ये वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट है विच इज बीइंग शेयर्ड बाय द गूगल, और इट इज अ टाइप ऑफ टेक्निक बाय द फार्मर्स और द बाय द हैकर्स. नॉर्मली इस तरह के जो केसेस होते हैं, ये फिशिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, दीज आर नॉर्मली दीज केसेस आर बीइंग एक्सपीरियंसेस बाय द बिग यू कैन से मल्टीनेशनल कंपनीज और अ बिग ब्रांडेड कंपनीज. कोई बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके जो कंपेटिटर्स होते हैं, दे यूज टू हैक आउट देयर सिस्टम, दे प्लांट द हैकर्स so that they can get the access or they can gain the access of their sites or of their websites. So आप आम लोगों के या आम यूजर्स के जो है वो इतने ज्यादा कोई खास जो डेटा भी नहीं होता उनके पास, तो दे डोंट नीड दीज टाइप्स ऑफ टेक्निक, दे जस्ट सिंपली प्लांट एनी वायरस. तो आप उन्हीं में जो है वो यूजर्स नॉर्मली अपना डेटा लॉस कर जाते हैं. इस तरह की बड़ी टेक्निक्स आप लोगों ने काफी कम एक्सपीरियंस की होगी, एंड आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस की भी हो, बट आई जस्ट वांट टू शेयर यू विद दैट कि इस तरह के भी सिक्योरिटी रिस्क जो है वो आजकल मार्केट में चल रहे हैं. ओके, next is effects of farming and how we will going to prevent the farming to be get involved into our system. So first is effects, like the creator of the malicious code can gain personal data such as bank account number from users when they visit the fake website. अच्छा, जब fake वेबसाइट आप ओपन करेंगे ना, तो उस वक्त आप लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल्स, आप लोगों के गूगल अकाउंट डिटेल्स, आप लोगों की जो भी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल, आप लोग जितनी भी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल जो भी चीज़ें होंगी, दे ऑल विल गोइंग टू गेट योर सिस्टम टू बी हैक्ड आउट. उसमें ये होता है कि आपके जितने भी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, आप लोगों का एनआईसी कार्ड्स हो गए, आप लोगों के पासवर्ड्स हो गए, दे विल ऑल करप्टेड, मतलब एक्सेस कर जाते हैं हैकर आप लोगों का सारा प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डेटा, सिर्फ और सिर्फ उस फेक वेबसाइट में एंटर करते हुए ही. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉड आइडेंटिटी थेफ्ट. वही चीज है फ्रॉड वेबसाइट्स का, और आइडेंटिफाई जो है वो थेफ्ट का मतलब ये है कि फ्रॉड का जो है वो वेबसाइट्स का आप लोगों को साथ एक्सेस होना. ठीक है, so this is the same thing which we have discussed. How to prevent the farming: some anti-spyware softwares can identify and remove the farming codes from the hard drive. आप लोगों की, सॉरी गूगल ड्राइव नहीं है ये, हार्ड ड्राइव है. आप लोगों के सिस्टम की हार्ड ड्राइव में जो है वो बहुत सारे मलिशियस कोड्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, और आप लोग वेब सर्वर्स के अंदर भी आ जाते हैं. तो आपको वो ऑटोमेटिकली वही वेबसाइट शो करता है जो वेबसाइट उसको दिखानी होती है हैकर को. सो इन दैट केस एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो कि एक्चुअली उन उन हैकिंग टेक्निक्स को रोकता है, ये एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर विच नॉर्मली यूज टू स्पाई आउट योर डेटा. मतलब एक तरह से कोई छोटा बग या वायरस जो सिस्टम में प्लांट करते हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा एक्सेस करके हैकर तक पहुंचा देता है. तो उस सिचुएशन के अंदर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर काम आते हैं, सो दैट यू विल गोइंग टू कैच आउट दैट स्पाई विच इज गिविंग द एक्सेस टू द हैकर. तो इस सिचुएशन के अंदर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर काफी कमाल का काम करते हैं. दे आर द पार्ट ऑफ द मेथड विच विल गोइंग टू प्रिवेंट योर डेटा टू बी get hacked, or your data to share the access to the hacker.
Second is a user should always be alert and look out for clues that they are being redirected to another website. जब भी कभी इस तरह का इशू हो, कभी कोई अननोन वेबसाइट या अननोन सोर्स पे आप आ गए हो, सो यू हैव टू लुक आउट। या कभी भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, चाहे वो नॉर्मल वेबसाइट हो, चाहे वो कोई प्लांटेड वेबसाइट हो, आपको हर वेबसाइट को जब भी आप ओपन करते हैं, यू हैव टू चेक आउट, यू हैव टू चेक द यू हैव टू चेक द आईएसपी व्हिच इज इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, के वो मतलब वो एक तरह से प्रोटेक्टेड साइट है, या कोई भी ऐसा आपको लगे कि ये फेक चीज हो रही है, सो यू हैव टू रन, डेफिनेटली यू हैव टू रन इमीडिएटली आउट ऑफ दैट वेबसाइट, क्योंकि फिर आप लोगों का डेटा अचानक से जो है वो एक्सेस करने लगता है, और आपका आईसीएस सारा डेटा जो है वो ट्रांसफर होकर चला जाता है हैकर के पास। So these are the effects and methods of farming. So now just look at that picture कि इस तरीके से जो है वो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग जो है वो इस तरीके के जो प्लांटेड यू कैन से स्क्रीन और वेबसाइट से बच सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से ऑनलाइन बैंकिंग वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल यूजर इसको देखे तो वो तो यही समझेगा ना कि आपसे वो ऑनलाइन banking verification मांग रहा है। You will going to share the user ID, you will going to share the password as well, you will going to share the email address as well, you will going to share the email password as well, और आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। बट दिस साइट एक्चुअली इट इज अ फेक एंड इट्स अ फ्रॉड वेबसाइट। आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस बैंक में लॉग इन किया हुआ है, आपने जिस ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं, तो वो किस तरीके से वर्क करता है। दीज टाइप्स ऑफ थिंग आर लिटरली कैन नॉट बी बेरेबल बाय एनी ऑफ द यूजर। अगर आप इस तरीके से कोई भी फेक वेबसाइट खोल के बैठ जाएंगे और जहां जहां जो आ रहा होगा उसको फिल करके आप कंटिन्यू करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका सब डेटा का जो एक्सेस है आपके सिस्टम का, आपके प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल चीजों का, वो ऑब्वियसली चला जाएगा हैकर के पास। तो इस तरीके के जो भी कोई स्क्रीन आपको या कोई भी ऐसा प्रीफेस या इंटरफेस नजर आए, तो यू डोंट हैव टू मेक हरी, या आप जल्दी जल्दी सब कुछ भर दें। नो, यू हैव टू स्टडी इट, यू हैव टू सी इट, एंड यू हैव टू चेक इट कि इस तरीके से होता भी है, या ये एक फेक वेबसाइट है, या एक फेक जो है वो स्क्रीन मेरे सामने शो हो रही है। ओके, so this till here we're going to end up today's session. अगर आपको किसी किस्म की भी क्यूरी हो, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, you can share with us in the comment box as well now as well. जब तक मैं सेशन एंड नहीं करता, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। if you have any question तो आप क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं, और you can speak out through by opening your mic as well. And one thing is like we're going to share you homework very soon, because हमने ये डिसाइड किया था कि पहले डिसाइड किया था कि ईद से पहले हम होमवर्क शेयर कर देंगे, मगर फिर बाद में डिसाइड किया कि नो, वी विल फर्स्ट हैव टू कवर अप some more detail and more important areas, ताकि फिर एंड में एक साथ ही आपको जो है वो जज कर सकें by giving you any task, home task, ताकि आपको हमें पता चल सके कि आपने जो चीजें सीखी हैं through the courses, you will be well aware of that things by solving the issue which will going to give you through the home task. Okay, second thing is like which is a very most common thing, मैं हर सेशन में ये बोलता हूँ कि if you have any type of question, any type of query, or you have any type of technical problem as well for joining the session, for or you are having an issue of audio or screen sharing, or if you have any issue regarding the system, और किसी किस्म का भी क्वेश्चन है, या फिर किसी किस्म की भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं सेशन से पहले, सेशन के बाद में, सेशन के बीच में, you have to report us by writing an email on our email address which is technolitrateofficial365@gmail.com। इस पे आप अपनी प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस दफा हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना फेस की जाए जो है वो पार्टिसिपेंट्स की जानिब से, वरना फिर जो है वो कोर्स का मजा नहीं आता, एंड यू विल नॉट गोइंग टू लर्न द थिंग्स, एंड यू विल नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दोज थिंग, कि अगर आप पूरे सेशन में आपको ऑडियो वीडियो का ही मसला रहा, तो आप फिर उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो आराम आराम से चीज़ों को लेके चलता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उर्दू में भी, उर्दू बायलैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, उर्दू इंग्लिश बोथ। एंड द मोस्ट कॉमन थिंग कि मैं आजकल की डेली लाइफ एग्जांपल्स को यूज करते हुए आई एम गोइंग टू क्लियर आउट द मीनिंग ऑफ वेरी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज व्हिच यू विल नॉट गोइंग टू नो व्हेन यू विल फर्स्ट रीड दैट टर्म, आपको नहीं समझ में आएगा, सो आई विल ट्रांसलेट इट इनटू इजी लैंग्वेज एज वेल। Okay, so here I am going to end of the session. I just received two messages, noted and acknowledged. So kindly show your participation. आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ लिया करें, आप या फिर आप कम से कम एक्नॉलेज और नोटेड तो लिखा करें। ओके, थैंक यू सो मच। यू विल गोइंग टू receive the recording on our official YouTube channel which is Technolitrate, and we'll going to share the recordings through email as well. Till then,
Take care. Allah Hafiz. Thank you for joining today's session. And the students which are not in the session, kindly see that recording so that you will going to do your home task. Thank you so much for joining today's session. Thank you so much, everyone.